نمبر 5 والنظر الی العالم، عالم کو دیکھنا عبادت۔ سبحان اللہ بے شک۔ اور ذرا سنو، آقا فرماتے ہیں اگر کوئی عالم یا طالب علم یعنی پڑھانے والا یا پڑھنے والا کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، خالی گزر جائے، کچھ پڑھے نہیں، دعا نہ کرے، پڑھنے والا بچہ یا پڑھانے والا استاد اگر خالی گزر جائے، آقا فرماتے ہیں اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، رضائے مصطفیٰ کانفرنس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسجد میں خالی بیٹھے تو اتنا ثواب، اور نماز پڑھنے جائے تو کتنا ثواب، مگر نماز بھی ہو نا تو ایسی ہماری آپ کی طرح نہیں، نیت بن رہی ہے ابراہیم پور میں اللہ اکبر، اور ٹہلیا ہے کشن گنج، بلاسپور ہاٹ میں، بلاسپور پاس میں، مجھے بھی بازار کے ہاٹ کے نام معلوم نہیں ہوئے، بلاسپور ہاٹ۔ کیسی نماز ہونی چاہیے؟ غازی آبادی نے کیا تھا؟ پڑھ دو ایک شعر، شاعر صاحب سنا ہوگا، مجھ سے ایک شعر سن کے دے، پڑھ دو، سننا چاہ رہے ہو؟ ارے تم تو سیل پہ سٹارٹ ہو، پہلے ہاتھ اٹھا لو۔ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا۔ کیا کہنا، ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ۔ اور غصے میں بولیے سبحان اللہ۔ ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں بنگال والوں کا پیار اتنا کر رہا ہے تو پھر غصہ کیسے؟ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، بولو یا رسول اللہ، تیرے سجدوں تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا۔ کب؟ سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا۔ اب سنیں، توجہ رکھ کے، میری بہنیں بھی آئی ہیں، انہیں بھی کچھ ملنا چاہیے، آپ بھی آئیں تو آپ کو بھی کچھ ملنا چاہیے۔ اگر 40-60% سمجھ لو گے تب بھی انشاءاللہ کامیاب رہو گے، اور مجھے پوری امید ہے 60% ضرور سمجھو گے۔ ادھر مرد اور ادھر عورتیں، اب اسلام کو دیکھنا، مردوں کے ریلیشنز کون کون ہوتے ہیں؟ ماں باپ، بھائی بہن، بیٹا بیٹی، بیوی، چچا تاؤ، خالو، مامو، پھوپا، یہ ہوتے ہیں نا سب رشتہ دار، اور سسرال والے بھی، پڑوس والے بھی۔ مگر اسلام سے پوچھو، اسلام تو بتا، اچھا اسلام کون؟ آپ کے ابراہیم پور میں اگر کسی کا نام محمد اسلام ہو تو اس سے نہیں پوچھنا، کس سے مذہب اسلام۔ اسلام تو بتا کہ مردوں کی بیوی بھی ہے،
बेटी भी है, बेटा भी है, भाई भी, बहन भी, चाचा ताऊ खालू मामू सारे रिश्तेदार हैं। मगर इस्लाम तू बता मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? बेटे का या बेटी का, बीवी का है या बहन का, चाचा का या ताऊ का या खालू का या मामू का? लोगों सुन लो, यहाँ से पैगाम लेकर के जाना, मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी बीवी का नहीं है, उसके बेटे का नहीं है, उसकी बेटी का नहीं है, उसके चाचा ताऊ खालू मामू का नहीं है, बल्कि मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। सुभान अल्लाह, बहुत किसका बोलो? माँ बाप का। अब तुम्हें फैसला करना पड़ेगा, बीवी की कितनी साड़ी आती है और माँ की कितनी साड़ी आती है, ये फैसला आप लो। अगर बीवी की तबीयत खराब हो जाए तो कितने डॉक्टर बदलते हैं, और माँ की तबीयत खराब हो जाए तो कितने डॉक्टर। अगर तुम मुसलमान हो तो इस्लाम की माननी पड़ेगी। इस्लाम ये कहता मर्दों पर सबसे ज्यादा हक है उसकी माँ से ज्यादा हक, बाप से ज्यादा, बेटी से ज्यादा, बेटे से ज्यादा, सारे रिश्तेदारों से ज्यादा। जिनकी शादी हो गई है उन पर अगर है तो उसके शौहर का है। सुभान अल्लाह, बेशक। किसका बोलो? शौहर का। अब ये भी फैसला करें, माँ बाप की ज्यादा सुन रही है या शौहर की? शौहर अगर कहीं काम करने चला गया, बस फिर तो ये आजाद पंछी घूमती फिर रही है। जो माँ ने कह दिया, जो बाप ने कह दिया वो अमर है। नहीं मेरी बहन सुन ले, अगर जलसे में आई है तो ये बात लेकर के जाना, नबी फरमाते हैं औरतों पर सबसे ज्यादा हक जो है उसके शौहर का है। किसका बोलो? यहाँ तक के आता हदीसों में कि शौहर की इजाजत के बगैर बीवी को घर से कदम निकालना जायज नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? शौहर की इजाजत के बगैर बीवी को घर से कदम निकालना जायज नहीं। अब ये जितनी आई है ये तो सब इजाजत लेकर आई होंगी। अरे बोलो ना, डर रहे हो कि तुम्हारा क्लास हो जाएगा इसलिए? कहीं सोच लो अच्छा मौलाना साहब के सामने बहुत ज्यादा सर हिला रहे थे, अब बताओ तुम इधर को आओ। ये तो मामला नहीं है ना। मेरी बहनें सुने, औरतों पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का, शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। ये मसला। अब सुनो, दूसरी बात मैं बता रहा हूं, तवज्जो रखना। तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? बोलो चाहते हो? यही तो वजह है अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हो, मजार शरीफ पे जाते हो, हर जगह जाते हो। मगर प्यारो ये भी सुनो, मजार पर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज नहीं। मजार पर औरतों का जाना जायज नहीं। औरतों के पीर के पांव दबाना जायज नहीं। औरतों को पीर की खिदमत करना जायज नहीं। औरतों को पीर के सर में तेल डालना जायज नहीं। औरतों को सामने बिठाल करके बैठ करके पीर को खाना खिलाना जायज नहीं। थोड़ी कर्री हो रही है तकरीर, लेकिन सुन लियो। सोच रहे होगे क्योंकि बास पीर इतना बड़ा बदतमीज है, जब तक वो औरतों से मुलाकात नहीं करता उसकी पीरा मुरीदी पूरी नहीं होती। मगर सुन लो प्यार, सुन लो। और ये भी मैं एक बात बता दूं, मुझे कोई ऐसा समझियो
पूरी जिम्मेदारी से बोल के जाऊंगा, अगर एक बात गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम। सुभान अल्लाह बेशक। कुरान और हदीस से बोल के जाऊंगा, अगर एक बात भी गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम। तो अब सुनो, औरत का मजार पे जाना जायज नहीं, वो बात अलग है। सबसे ज्यादा मजारों पे यही पड़ी है। जिस मजार पे देखो, जिस उर्स में देखो, जिस मेले में देखो, अल्लाह माफ फरमाए, यहाँ तो बड़ी तहजीब से बैठी है, मगर मैं आता हूँ ना जलसों में, कहीं कहीं उर्स होता है, अल्लाह माफ फरमाए, हालात इतने गंदे होते हैं, औरतें लड़कियां मेकअप करके, वो चुटियां बना करके, और वो नई नई साड़ी और जेवर, क्रीम, पाउडर, ये सारी चीजें लगा करके मोबाइल हाथ में लिया, मेले में घूमती फिर रही हो। लोग कहते हैं साहब माशरा बिगड़ गया, माहौल बिगड़ गया, हालात अच्छा। ये जो औरतें मेले में घूम रही हैं, ये अमेरिका से आई होंगी, इंग्लैंड से आई होंगी, बारिश में बरस गई, आलूओं के खेत में पैदा हुई है। ये भी हमारी तुम्हारी बहन बेटियां हैं। पहले मैं अपने आप को कहूंगा, बाद में आपको कहूंगा, हमारी तुम्हारी बहन बेटियां, ख्याल रखो। मगर माँ बाप मालूम है क्या है? यही माँ बाप इतने इतने बड़े मोबाइल दे दिए बेटियों को, इतने इतने बड़े। इस बाप से पूछो, बाप से, तुमने अपनी बेटी को मोबाइल क्यों दिया? बोलो बेटा, बात मोबाइल क्यों दिया बेटी को? मोबाइल देने की जरूरत क्या है? किससे बातें करेगी? इसके ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, ट्रेनें चल रही है, हवाई जहाज चल रहा है। क्यों दिया बेटी को मोबाइल? किससे बात करेगी? कहां बात करेगी? तुम बाप हो के दुश्मन? 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। जवान बेटी को मोबाइल दिया, जवान बेटी को मोबाइल देने की वजह क्या है? क्यों दिया? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है? मगर बिल्कुल पता ही नहीं है। इतना सीधा, इतना भोला, यूट्यूब खोल के देखेगी तो मालूम है सबसे पहले वही गंदी गंदी बातें, वही लड़के और बच्चों, वही छोटी छोटी क्लिपें बना बना के डाल रहे हैं। लड़की लड़के आपस में गंदी गंदी बातें कर रहे हैं उसमें। वो देखने के लिए बेटी को मोबाइल दिया। व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? फेसबुक चलाएगी, कहां चलाएगी? बात करेगी, किससे करेगी? बेटी को मोबाइल की जरूरत क्या है? आज जो समाज में आग लगी है इसी मोबाइल के जरिए लगी। वो लड़की जो इब्राहिमपुर से निकल के बाहर नहीं गई, उसके पास फिल्मों का ढंग आ गया, उसके पास फिल्मों का तौर तरीका। जरा गौर करो प्यारे, आज आंखों में आंसू आ जाते हैं। कितनी लड़कियां भाग जाती हैं। क्या माँ ने भगाई? क्या बाप ने भगाई? हाँ, ये माँ बाप ने भगाई है। तुम कहो या मत कहो, मैं कहता हूं किसी ने नहीं भगाई है, माँ बाप ने भगाई है। क्यों? क्यों दिया था मोबाइल हाथ में? किसकी बेटी को मोबाइल की जरूरत है? 8-10 लफंगे लड़के आए, वो बाल उन्होंने बना लिए उल्टे सीधे, कपड़े पहन लिए उल्टे सीधे, बस मोबाइलों पे चैटिंग शुरू हो गई। जब हमारी बेटी के पास मोबाइल ही नहीं होगा तो किसका फोन आएगा? कहां से चैटिंग होगी? मगर माँ बाप इस बात पर गौर नहीं करते, तवज्जो नहीं करते। मैं किसी की बेटी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मगर भाई जरा सोचो, मैं भी इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। इतनी दूर से आया हूं तो कुछ ना कुछ तो ले लो। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर बेटियों पे मोबाइल है तो यही वजह है रात के 11-11 बजे मोबाइल